درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، اور تم کہتے ہو کہ وہ تمہاری دعائیں نہیں سنتا۔ بھارتی فوج کی کنٹرول لائن کی دیوا سیکٹر پر اشتعال انگیزی، ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 2 پاکستانی فوجیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کے مطابق پاک فوج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارت کی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ دنیا نئے طرز کی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ 2019 میں دشمن نے ہم پر حملہ کیا اور اپنا پائلٹ چھوڑ کر دم دبا کر بھاگ گیا۔ اب دشمن نئی چال چل رہا ہے، انتشار اور فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دشمن ہمیں لسانی اور مذہبی منافرت سے لڑانے کی کوشش کرے گا۔ قصور کے علاقے ارزانی پور میں معمولی تنازع پر 2 گروپوں میں فائرنگ کے نتیجے میں باپ اور 4 بیٹیوں کا بہیمانہ قتل کر دیا گیا۔ DPO قصور زاہد نواز مروت کا جائے وقوع کا دورہ، جائے وقوع سے پنجاب فورنسک ٹیموں اور کرائم سین نے شواہد اکٹھے کیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے لیے عام انتخابات کرانے کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی طرف سے بھیجی گئی سمری کی منظوری دی، جس کے بعد اب گلگت بلتستان میں عام انتخابات 15 نومبر بروز اتوار کو ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل نہ ہو سکی، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے وقت مانگ لیا۔ عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل سے متعلق معاملے کی سماعت 30 ستمبر تک ملتوی کر دی، جبکہ پیناما ریفرنسز میں مرکزی اپیلوں پر سماعت 9 دسمبر کو ہوگی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ پہلے نواز شریف کی حاضری کو یقینی بنانا ہے، پھر ایک ساتھ اپیلوں پر سماعت کریں گے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے انکشاف کیا کہ نون لیگی قیادت کی عسکری قیادت سے 2 ماہ کے دوران 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ شیخ رشید نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ دونوں ملاقاتوں میں احسن اقبال موجود رہے۔ پہلی ملاقات میں شہباز شریف اور میں نے ایک ٹیبل پر کھانا کھایا۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی صدارت میں ہونے والے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں اسٹیل ملز ملازمین کی تنخواہوں کے لیے 3 ارب 8 کروڑ روپے کی منظوری دے دی گئی۔ ملازمین کو رواں مالی سال کے لیے تنخواہوں کی ادائیگی ہوگی۔ چیئرمین پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، انہوں نے کہا کہ کراچی والوں کو صوبائی اور وفاقی حکومتوں سے پہلے ہی کوئی امید نہیں ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان چیف آف آرمی اسٹاف کی کراچی آمد پر کراچی والوں کی امیدیں جاگی، امیدیں ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ سندھ ہیومن رائٹس کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ سندھ کے اندر روزانہ سینکڑوں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، لیکن یہ غیر فعال کمیشن کبھی نوٹس نہیں لیتا۔ پیپلز پارٹی نے اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے ہیومن رائٹس کمیشن بنا رکھا ہے۔ بلاول ہاؤس کے سامنے پاک اویسس کی جانب سے کروڑوں روپے سے لگایا گیا RO پلانٹ عوام کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوا، مشینری اور دیگر سامان خراب ہونے لگا۔ کراچی سے PTI رہنما خرم شیر زمان بلاول ہاؤس کراچی کے سامنے پہنچ گئے اور پیپلز پارٹی کے دعووں کی دھجیاں اڑا دیں۔
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में 6ठी ता 8वीं जमात के स्कूल खुल गए। ताहम सिंध हुकूमत ने दूसरे मरहले में तालीमी इदारे खोलने का फैसला मुअख्खर कर दिया। तमाम स्कूलों की सख्त निगरानी की जाएगी। कोरोना की सूरत हाल को मॉनिटर करते हुए तीसरे मरहले में प्राइमरी स्कूल 30 सितंबर से खोले जाएंगे। और PIA ने सऊदी अरब के लिए किराया यकदम बढ़ा दिया। कराची से जद्दा, मदीना या दमाम के लिए एक तरफा किराया 1,27,000 रुपये कर दिया गया, जबकि लाहौर, इस्लामाबाद या पेशावर से जद्दा और मदीना का किराया 1,33,000 कर दिया गया। लाहौर, इस्लामाबाद या पेशावर से रियाज और दमाम का एक तरफा किराया 1,31,000 कर दिया गया। इससे पहले पाकिस्तान से सऊदी अरब का किराया 84,000 रुपये था। अस्सलामुअलैकुम। JRN न्यूज स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक और मैं हूं अदन आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। तीन चीजों को कभी मत छोटा समझना: कर्ज, फर्ज और मर्ज। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब, कहां और कैसे ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अगर तुम्हारी शिकायत करते हुए कोई अल्लाह के सामने रो पड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या कभी सोचा है? किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती है। सारी बात नीयत की होती है।
वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की, जिससे 2 पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन के देवा सेक्टर में इश्तियाल अंगेजी का मुजाहरा करते हुए हल्के और भारी हथियारों से फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 2 पाकिस्तानी फौजियों ने जाम शहादत नोश किया। सिपाही नूरुल हसन की उम्र 29 और सिपाही वसीम अली की उम्र 25 साल थी। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत की चेक पोस्टों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में दुश्मन को भारी नुकसानात पहुंचने की इत्तला है। आज़ाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग और गोलाबारी में आए रोज इजाफा देखा जा रहा है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तान में तैनात भारतीय सफारतकारों को बारहा दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता रहा, ताहम भारत का जंगी जुनून किसी तौर कम होने में नहीं आ रहा, जबकि आलमी बरादरी भी भारत को रोकने में नाकाम नजर आती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहता है, हाइबर जंग मुसल्लत की जा रही है। मुल्तान में उर्स से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बुजुर्गान दीन का फ़लसफ़ा समझने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान, राजनपुर, डेरा गाजी खान और रहीम यार खान के दरियाओं में तुग़यानी है। पानी से घर तबाह, फसलें बर्बाद हो गईं। इतनी मुश्किलात के बावजूद ज़ायरीन की बड़ी तादाद उर्स में शिरकत के लिए आई। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दुनिया नए तर्ज की जंग की तरफ जा रही है। 2019 में दुश्मन ने हम पर हमला किया और अपना पायलट छोड़कर दुम दबाकर भाग गया। अब दुश्मन नई चाल चल रहा है, इंतशार और फिरकावारियत फैलाने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन लासानी और मजहबी मुनाफरत से लड़ाने की कोशिश करेगा। हम ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि पाकिस्तान जिन मुश्किलात से दो चार है, हर इदारे, हर फर्द और हर सूबे ने किरदार अदा करना है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने स्टील मिल्स मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए 3 अरब 8 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। मुशीर खजाना हफीज शेख की सदारत में होने वाले इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में स्टील मिल्स मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 3.8 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई। मुलाजमीन को रवा माली साल के लिए तनख्वाहों की अदायगी होगी। मुशीर खजाना ने हिदायत जारी की कि रिटायरमेंट प्लान के तहत मुलाजमीन के बकायाजात की तफसीलात और स्टील मिल्स की अदायगियों से मुतालिक रिपोर्ट आइंदा इजलास में पेश की जाए। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत टेक्सटाइल मसनूआत से एडिशनल कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी हटाने की भी मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 10 करोड़ 20 लाख रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट और कौमी वर्सा और सकाफत डिवीजन के अखराजात के लिए 8 करोड़ 50 लाख रुपए की ज़िमनी ग्रांट मंजूर कर ली गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के लिए आम इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के लिए आम इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की तरफ से भेजी गई समरी की मंजूरी दी, जिसके बाद अब गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 15 नवंबर बरोज़ इतवार को होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होने पर असम्बली तहलील हो गई थी। इलेक्शन कमीशन ने 2 जुलाई को इंतखाबी शेड्यूल जारी किया, जिसके तहत 18 अगस्त को पोलिंग डे मुकर्रर किया गया था। ताहम नून लीग के रुकन की जानिब से इंतखाबी शेड्यूल के खिलाफ अदालत में पिटीशन दायर की गई और इलेक्शन कमीशन ने 2 जुलाई को जारी इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट में उन्होंने जनरल असम्बली में दोबारा कश्मीर का मसला उठाने पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तुर्की की गैर मुतज़लज़िल हिमायत कश्मीरी की जद्दोजहद के लिए ताकत का बाइस है। भारत का कश्मीर में बढ़ता हुआ जुल्म, तुर्क सदर ने एक बार फिर जनरल असम्बली में कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई। तैयब अर्दवान का कहना था कि मसला कश्मीर जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम में कलीदी हैसियत रखता है, लेकिन ये मसला आज तक हल नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के इक़दामात ने मसले को पेचीदा कर दिया है। हम इस मसले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने के हामी हैं। और यहाँ आपको बताते चलें, बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची में हेल्थ साइंसेज कम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखने की तकरीब मुनक्किद हुई। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक हेल्थ साइंसेज कॉम्प्लेक्स डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, नर्सिंग कॉलेज एंड मेडिकल ट्रेनिंग स्कूल और अलाइड हेल्थ साइंसेज एंड कॉलेज ऑफ फिजिकल थेरेपी पर मुश्तमिल होगा। हेल्थ साइंसेज कॉम्प्लेक्स की तामीर 3 मराहिल में तकमील पजीर होगी। पहले मरहले में बहरिया यूनिवर्सिटी डेंटल कॉलेज का क़याम डेंटल केयर एंड रिसर्च के शोबे में गिरां कदर बेहतरी लाएगा। बहरिया यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस कॉम्प्लेक्स मुल्की तिब्बी शोबे की तरक्की में मुआविन साबित होगा।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जेहलम के करीब फील्ड फायरिंग रेंजेस का दौरा। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों की पेशा सलाहियतों को सराहा। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जेहलम के करीब फील्ड फायरिंग रेंजेस का दौरा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। उन्होंने जदीद जंगों से मुतालिक बेहतरीन तरबियत और ऑपरेशनल तैयारियों को भी सराहा। आर्मी चीफ ने जदीद तरीन टैंक VT-4 का मुजाहरा देखा। VT-4 का मवाजना किसी भी जदीद तरीन टैंक के साथ किया जा सकता है। VT-4 की प्रोटेक्शन और फायरिंग की सलाहियत का कोई सानी नहीं। आर्मी चीफ ने VT-4 की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में एक और शानदार इजाफा हुआ है। पाक फौज मुल्क को दरपेश खतरात से आगाह है। हम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील ना हो सकी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वक्त मांग लिया। अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील से मुतालिक मामले की समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी, जबकि पानामा रेफरेंसेस में मरकजी अपीलों पर समाअत 9 दिसंबर को होगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पहले नवाज शरीफ की हाजिरी को यकीनी बनाना है, फिर एक साथ अपीलों पर समाअत करेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की पानामा रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने की। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर अदालत में पेश हुए। नैब की जानिब से एडिशनल प्रोसिक्यूटर जहाजिब भरवाना, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी, जबकि विफाक की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर अदालत में पेश हुए। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि एहतसाब अदालत के इसी फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील भी ज़ेर समाअत है। नवाज शरीफ की हाजिरी के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। पहले इस मामले को देख लें, फिर एक साथ अपीलों पर समाअत करेंगे। अदालत ने मरकजी अपीलों पर समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील के हवाले से एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर ने अदालत को बताया कि डाक के जरिए भिजवाए गए वारंट्स वसूल हो चुके हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि काउंटी कोर्ट से वारंट की तामील का क्या बना। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि काउंटी कोर्ट के जरिए तामील की रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या उनकी तरफ से तस्दीक का कोई खत मौसूल हुआ है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने नफी में जवाब दिया और कहा कि अभी उनकी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। अदालत ने इस्तफसार किया कि कितना वक्त लग सकता है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले कि कम से कम 15 दिन का वक्त दरकार है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अगर एक मुकर्ररा वक्त पता चल जाता कि 10 दिन लगेंगे या 15 दिन, तो हम इस हिसाब से तारीख मुकर्रर कर देते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि आप केस गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करें। जैसे ही जवाब आता है अदालत को आगाह कर दूंगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस तरह तवील अरसे के लिए समाअत मुलतवी नहीं कर सकते, हम एक हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी कर देते हैं। अदालत ने केस की समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अब्दुल रहमान शेख, JNN, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने इंकशाफ किया है कि नून लीगी क़यादत की अस्करी क़यादत से 2 माह के दौरान 2 मुलाकातें हुई हैं। शेख रशीद ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों मुलाकातों में एहसन इकबाल मौजूद रहे। पहली मुलाकात में शहबाज शरीफ, मैंने एक टेबल पर खाना खाया। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 16 तारीख की आर्मी चीफ और जनरल फैज़ हमीद DG/ISI की पार्लिमानी लीडरों की मुलाकात को जब अंग्रेज़ी अखबारों ने मुख्तलिफ रंगों में पेश किया, तो कल मैंने उसकी असल सूरत हाल पेश की कि ये 15-20 जितने लीडर थे सब ने मुलाकात की। आज क्योंकि जो है वो मरियम साहबा ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये मुलाकात नहीं हुई या इसकी नवाज शरीफ को खबर नहीं थी, तो मैं वाज़े करना चाहता हूँ, एक नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं। और अब जो है जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, कल मैं 5 बजे फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मैं सारी कौम को बताना चाहता हूं कि ये मुलाकात जो है ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के और सूबा प्रोविजनली सूबा बनाने के बारे में हुई, लेकिन इसमें सारी सियासत पर 3.5 घंटे बातचीत हुई। और जो कुछ अरसा पहले मुलाकात हुई उसमें 5.5 घंटे मुलाकात हुई। वो डिनर था, ये सलाद और चाय थी। और अगर लोग मुझे चैलेंज कर रहे हैं तो मैं बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब को चैलेंज करता हूं, किसी चैनल पर आए, मैं ये प्रूफ पेश कर सकता हूं कि दोनों लीडरान की मुलाकातें हुई और सब लीडर वहां मौजूद थे। अगर नवाज शरीफ को इसका नहीं खबर तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। यकीनन जो
कुछ अरसा पहले पहली मुलाकात हुई, उसका भी नवाज शरीफ को पता नहीं होगा। और ये मैं पहले ही कह चुका हूं कि दिसंबर जनवरी में नून से शीन लीग निकलेगी और इन पार्टी में इख्तलाफात हो गए। इनका एजेंडा सिर्फ ये है कि मार्च में होने वाले सेनेट के इंतखाबात जिसमें तहरीक इंसाफ अक्सरियत लेगी उसको सबोटाज किया जाए, जो ये कभी कामयाब नहीं होंगे। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कल मैं 5 बजे फैसलाबाद में उसका जवाब दूंगा। रुख करेंगे लाहौर का, जहां वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास हुआ, जिसमें लाहौर के मसाइल के हल के लिए लाइन ऑफ एक्शन पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि हम लाहौर शहर में बसने वालों के मसाइल के हल के लिए जो कुछ इंसानी बस में हुआ कर गुजरेंगे। मैं हर माह दिए गए हदफ पर होने वाली पेशरफ्त का खुद जायजा लूंगा। पार्किंग इशूज़ के हल, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बेहतरी और जराइम के खात्मे के हवाले से ठोस इकदाम चाहता हूँ। वज़ीर आला को मुख्तलिफ महकमों ने 1 माह के दौरान मसाइल के हल के हवाले से किए जाने वाले इकदाम पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने बताया कि लाहौर शहर के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जाएंगे। शहर में गदागरों के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई जाएगी। इजलास में सूबाई वज़रा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और PTI के रहनुमाओं ने लाहौर के मसाइल के हल के लिए तजावीज़ दी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कतर के सफीर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान बिन फैसल अल सानी की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात में दुतरफा ताल्लुकात समेत दीगर अहम इलाकाई अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुलाकात के दौरान कहा कि पाकिस्तान अपने ब्रादर मुल्क कतर के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। ब्रादर मुल्क कतर ने हर मुश्किल घड़ी में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ पार्लिमानी रवाबित और दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने का ख्वाहा है। दोनों ममालिक पार्लिमानी वफूद के तबादलों से एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान इलाकाई तरक्की, तिजारत, तवानाई और मईशियत के इस्तेहकाम के लिए कतर के साथ तरजीह बुनियादों पर शराकत दारी चाहता है। कतरी सफ़ीर का कहना था कि कतर पाकिस्तान के साथ अपने करीबी ताल्लुकात को बड़ी कदर की निगाह से देखता है। कतर पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन को जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि कतरी सरमायाकार पाकिस्तान में तवानाई समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग देना चाहते हैं। मईशियत की मजबूती के लिए कतर पाकिस्तान के साथ अपना हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन जमातों की राहबर कमेटी का अहम इजलास में किन अहम उमूर पर बात हुई, जानते हैं अपने नुमाइंदे शिराज अहमद शिराजी से, जो कि इस वक्त वहां मौजूद हैं। जी शिराज, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अकरम खान दुरानी के रिहाइश गाह के बाहर और आज जो है अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी का एक अहम मशावरती इजलास जो है वो बुलाया गया है। इजलास में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, एहसन इकबाल, अकरम खान दुरानी, मियां इफ्तिखार हुसैन और साथ साथ जो है अपोजिशन जमातों के जो रहनुमा है उन्होंने शिरकत की है। और इजलास में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद जो एक्शन प्लान दिया गया था, जिसके मुताबिक जो है अक्टूबर के महीने में मुल्क भर में जो छोटे शहर है वहाँ पर जो है एहतजाजी मुजाहरे और धरने होंगे। साथ साथ नवंबर में जो है चारों सूबों के अंदर जो है एहतजाजी मुजाहरे होंगे और साथ साथ जो है जनवरी के महीने में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो है एक बड़ी जो है अजीमुशान रैली का इनेकाद किया जाएगा। साथ साथ एहतजाजी मुजाहरे का भी जो है वो ऐलान किया जाएगा और उसके साथ साथ जो है इस्तीफे की तरफ भी जाएंगे। तो इन सारे जो पॉइंट्स है इन पर अभी भी इजलास में जो है मुशावरत जारी है। साथ साथ इजलास की सबसे अहम बात यह है कि जो अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी थी उनको आज ख़त्म कर दिया गया है। अपोजिशन की रहबर कमेटी के बजाय अब जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से एक तहरीक का आज से बाकायदा आगाज़ किया जाएगा, जिसके ज़रिए जो है हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। मैं आपको बता चलूँ कि आज से बाकायदा तौर पर जो है रहबर कमेटी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है और अब हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से तहरीक बनाई गई है वो मुतहर्रिक होगी और मुल्क भर में जो है एहतजाजी मुजाहरे जो है उनकी निगरानी करेगी। जी बहुत शुक्रिया शिराज अहमद शिराजी तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि कराची वालों को सूबाई और वफाकी हुकूमतों से पहले ही कोई उम्मीद नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कराची आमद पर कराची वालों की उम्मीदें जागी, उम्मीदें टूटनी नहीं चाहिए। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नए वाक़यात के रोनुमा होते ही हुक्मरान कराची को भूल गए। 1150 अरब रुपए की पर्चे का कुछ पता नहीं। मसाइल हल करने के बजाय दोबारा तबाही बर्बादी का इंतजार किया जा रहा है। कराची में दोबारा मसाइल पैदा हुए तो लोग इदारों को मोरद इल्ज़ाम ठहराएंगे। उनका मजीद कहना था कि मुल्क का अलमिया है कि जब भी बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियारात दिए गए वो आमलों ने दिए। नाम नहाद जमहूरियत के दावेदारों ने हमेशा अवाम के हुकूक सलब किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत से बल्दियाती इंतखाबात होते हैं। दुनिया के किसी मजहब माशरे में बल्दियाती हुकूमतों को एक दिन के लिए भी गैर फाल नहीं किया जाता। सिंधी हमारे भाई हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी तासुब ज़दा और करप्ट इक़्तिदार को तूल देने के लिए सूबे में खूनी सियासत करती है, जिसकी वजह से नफरतों में इजाफा होता है। और यहाँ आपको बताते चले, बिलावल हाउस के सामने पाक ओएसिस की जानिब से करोड़ों रुपए से लगाया गया आरओ प्लांट अवाम के लिए फायदेमंद साबित ना हुआ। मशीनरी और दीगर सामान खराब होने लगा। कराची से पीटीआई रहनुमा खुरम शेर जमान बिलावल हाउस कराची के सामने पहुंच गए और पीपल्स पार्टी के दावों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने बताया कि बिलावल हाउस के सामने मौजूद आरओ प्लांट के अलावा क्लिफ्टन और शेरिन जना कॉलोनी को पानी फ्राहम करने वाले आरओ प्लांट भी नाकारा हो चुके हैं। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये वही आरओ प्लांट है जिसके आप हालात देख रहे हैं इस वक्त क्या है, जो सूबे सिंध के अंदर अंदाजन कोई 750 आरओ प्लांट्स लगाने का फैसला किया गया था और तकरीबन जितने भी आरओ प्लांट हैं हम समझें कि 90 से 95% आरओ प्लांट बंद पड़े और सबका ये हाल है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो आरओ प्लांट सूबे सिंध में कराची शहर में बिलावल हाउस के सामने उस आरओ प्लांट के ये हालात हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सूबे भर के अंदर जो बाकी आरओ प्लांट्स होंगे उसके क्या हालात होंगे। यहाँ पे जो पाक ओएसिस का स्टाफ बैठा हुआ है वो बता रहा है कि ये शायद चला ही 2 या 3-4 महीने बाद चला है। इधर आप देखेंगे कि जाले लगे हुए हैं इनके ऊपर, इनके सारे सिस्टम के ऊपर, ये सब गंदा सामान रखने के लिए इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आवाम के पैसे को सूबे सिंध के अंदर बर्बाद किया गया है। कमीशन के बेसिस पे जो है इस तरह के ये सारे आरओ प्लांट्स लगाए गए हैं और आज वो सारे आरओ प्लांट्स तकरीबन बंद है। जो जरदारी साहब ने एशिया का सबसे बड़ा आरओ प्लांट थरपाकर में या मिट्टी में जाके खोला था वो भी बंद पड़ा है। तो हमने जो है ये बिलावल जरदारी ने एक तहरीक शुरू की हुई है, तो हमने कहा हम भी एक तहरीक शुरू करें और बताएं कि सिंध के लोगों को पीपल्स पार्टी ने जो है टीका जो लगाया हुआ अरबों रुपये का किस तरह लगाया। ये देखें, आगे भी मैं चाहूँगा कि ये दिखाया जाए कि किस तरीके से ये आरओ प्लांट के हालात हैं और अंदाज़न कोई मेरे ख्याल से कोई 40 से 50 करोड़ रुपए जो हैं इस आरओ प्लांट के ऊपर लगे हैं। ये नीचे देख लें क्या हालात हैं। ये इधर आ जाएं, ये सब सामान जो है कचरे की तरह यहाँ पे मशीनों को फेंका हुआ है, मशीनें बंद हैं और पानी जो है वो टैंकी के अंदर भरा हुआ है लेकिन कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि इसकी फ़िल्टर जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, इनकी मेम्ब्रेन ख़त्म हो गई है, यहाँ पे किसी किस्म की मेंटेनेंस नहीं की जाती है। और जो कंपनी है पाक ओएसिस वो कहती है हमने तो बना के दे दिया, अब हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो शायद उनको मेंटेनेंस के पैसे नहीं मिलते हैं, वल्लाह बेहतर जाने क्या है। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तोहफे बिलावल हाउस के बिल्कुल सामने आरओ प्लांट है जो कि अंदाज़न 2.5 से 3 साल से बंद पड़ा हुआ है। पीटीआई के मरकजी रहनुमा और पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख ने सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन पीपल्स पार्टी ने सिर्फ सियासी मुखालफिन के लिए बनाया हुआ है। पीटीआई मरकजी रहनुमा पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख ने अपने वकला के हमरा सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन में पेश हुए और अपना जवाब जमा करवाया। याद रहे कि हलीम आदिल शेख पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम पर सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सो मोटो लिया था। सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हलीम आदिल शेख का कहना था कि सिंध के अंदर रोजाना सैकड़ों इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, लेकिन ये गैर फाल कमीशन कभी नोटिस नहीं लेता। पीपल्स पार्टी ने अपने सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन बना रखा है, लेकिन ये हमें किसी भी दबाव में नहीं ला सकते। ऐसी हालत है कि सिंध के अस्पतालों में मरीजों को एम्बुलेंस तक नहीं मिलती, लाशें गाड़ियों पर ले जाते हैं। उनका मजीद कहना था कि एपीसी वाले कहते हैं वोट को इज्जत दो, जबकि ये लोग हुकूमत में होते हैं तो कहते हैं कि नोट को इज्जत दो। इस मौका पर हलीम आदिल शेख के वकील एडवोकेट शाहिद सोमरो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किसी भी सूबे के जस्टिस भी सो मोटो एक्शन नहीं ले सकते। सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की है, हम उनके सो मोटो एक्शन को चैलेंज करेंगे, अदालत जाएंगे। रावलपिंडी के थाना गंज मंडी की हदूद में ट्रैफिक पुलिस के सताए ड्राइवर ने अपने रिक्शे को आग लगा दी। रिक्शा आग लगने से जलकर राख। मौके पर शहरियों ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। थाना गंजमंडी की हदूद में बांसावाला चौक में ट्रैफिक पुलिस के रवैये और बार बार के चालान से तंग आए रिक्शा ड्राइवर ने अपने रिक्शे को आग लगा दी। ड्राइवर वली जान ने रोते हुए दुहाई दी कि ट्रैफिक पुलिस का एहलकार मुसलसल टारगेट करके रिक्शा चालान कर रहा था। ड्राइवर का कहना था कि रिश्वतखोर ट्रैफिक के एहलकार ने जीना हराम कर दिया है। संगीन नताइज की धमकियों से तंग आकर एहतजाजन रिक्शा को आग लगाई। SHO गंजमंडी पुलिस भारी नफरी के साथ मौके पर पहुंच गए, जबकि ट्रैफिक एहलकार फरार हो गया।
सी पी ओ रावलपिंडी मोहम्मद एहसन यूनिस रात गए एहतजाज करने वाले रिक्शा ड्राइवर के घर पहुंच गए। सी पी ओ ने रिक्शा ड्राइवर की दिलजोई की और रिक्शे की मरम्मत के लिए इमदादी रकम भी फराहम की। सीपीओ रावलपिंडी मोहम्मद एहसन यूनुस ने रिक्शा चलाने वाले रिक्शा ड्राइवर से उसके घर जाके मुलाकात की। इस मौका पर चीफ ट्रैफिक अफसर सैयद अली अकबर और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी सीपीओ के हमरा थे। रिक्शा ड्राइवर वली शाह ने वजाहत की कि ट्रैफिक वार्डन्स ने कोई तशद्दुद या नारवा सलूक नहीं किया, माली हालात की वजह से जज्बाती होकर ये फेल किया। इंक्वायरी के दौरान भी ट्रैफिक स्टाफ की किसी किस्म की ज्यादती सामने नहीं आई। सीपीओ एहसन यूनुस ने कहा कि रिक्शा ड्राइवर का फेल किसी जाविया से काबिल तकलीद और काबिल तायद नहीं, ताहम इंसानी हमदर्दी के पेश नज़र इसकी माली इमदाद की गई ताकि वो रिक्शा मुरम्मत करवा कर बाइज्जत रोजगार कमा सके। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी पुलिस मुआशरे के तमाम तबकात बिलखुसूस मेहनत कश तबके के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त मसरूफ़ अमल है। रुख करेंगे कसूर का, जहां के इलाके इरजानीपुर में 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई। एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। डीपीओ कसूर जाहिद नवाज मरवत का कत्ल की जाए वकुआ का दौरा, आईजी पंजाब ने आरपीओ शेखुपुरा से रिपोर्ट तलब कर ली। डीपीओ कसूर जाहिद नवाज मरवत एक ही खानदान के 5 अफराद कत्ल के अफसोसनाक वाक़े की इत्तला पाकर फौरी मौके पर पहुंच गए। हालात और वाक़यात का जायजा लिया। इस मौके पर डीएसपी चूनिया खालिद असलम भी उनके हमरा थे। जाहिद नवाज मरवत का कहना था कि जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने के लिए पंजाब फॉरेंसिक टीमों और क्राइम सीन को तलब कर लिया गया है। मुल्ज़िमान ने ज़मीन के छोटे से टुकड़े की खातिर खूनी जज्बाती और एहसास के रिश्तों को बुरी तरह पामाल किया। उनका मजीद कहना था कि मुल्ज़िमान के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा और इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ आईजी पंजाब इनाम गनी ने कसूर में 5 अफराद के कत्ल के वाक़े पर नोटिस लेकर आरपीओ शेखुपुरा से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम रावलपिंडी में 17 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली बिल्डिंग डिपार्टमेंट से चौक तक निकाली गई। एहतजाजी रैली की क़यादत एपका पाकिस्तान के मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सरदार हनीफ और दीगर रहनुमाओं ने की। एहतजाज में पीटीडीसी, रेलवे, टीएमए, एचबीएफसी समेत दीगर तंजीमों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने 17 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। रैली के शुरका का कहना था कि इदारों की नशकारी और जबरी बरतरफियां तस्लीम नहीं करते। उन्होंने तनख्वाहों में इजाफे, एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी अलाउंस, ग्रुप इंश्योरेंस और सालाना इंक्रीमेंट की बहाली का मुतालबा किया है। मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सरदार हनीफ ने कहा कि जालिम हुकूमत ने हर तबके के मुलाजमीन को जिंदा दरगोर कर दिया है। मरकज और सूबाई हुकूमत ऐप का चार्टर ऑफ डिमांड फौरी मंजूर करें। चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर ना हुआ तो हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन कॉल की हिमायत का ऐलान करेंगे। शेखुपुरा के इलाके जंडियाला में बरसगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद पीर वारिस शाह के 222वें सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज कर दिया गया। उर्स की तकरीब का आगाज दरबार पर अर्के गुलाब से गुस्ल देने के बाद किया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अजमत अली से। जी अजमत, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बरे सगीर के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के 222वें सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया है। आज सुबह 8 बजे तकरीबात का आगाज़ मज़ार-ए-पुर अनवार को अर्के गुलाब से गुस्ल देने के बाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा के अलावा तमाम मजहबी और सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। इसके अलावा ये तकरीबात का सिलसिला 3 दिन तक जारी रहेगा। पूरी दुनिया से आशिकाने मुस्तफ़ा इस बरे सगीर के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर अपनी मोहब्बतों के फूल निछावर करने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा कहीं पर तो हीरखानी की जा रही है और कहीं पर आने वाले ज़ायरीन में लंगर भी तकसीम किया जा रहा है। और अगर बात की जाए सिक्योरिटी के इंतज़ामात की, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से जगह जगह पर पंजाब पुलिस के अहलकार तैनात कर दिए गए हैं, जो अपनी सिक्योरिटी सर अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। मज़ीद ये उर्स की तकरीबात का सिलसिला 3 दिन तक जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया अजमत अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। लियाकतपुर में जालिम दरिंदों ने मां की अजमत को भी ना पहचाना। गुज़श्ता दिन मुजफ्फरगढ़ की रिहायशी जोहरा माई को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। लाश कमात के खेत से मिली। खातून के कानों से सोने की बालियां भी निकाल ली गईं। बुरसा की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इंसाफ की अपील।
60 साला जोहरा माई एक घर में काम करती थी। जब शाम को जोहरा माई वापस घर ना पहुंची तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। दौरान तलाश इतला मिली कि कमात के खेत में कोई लाश पड़ी है, जिस पर वर्षा ने तलाश की तो कमात के खेत से जोहरा माई की लाश मिली। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और जोहरा माई की लाश को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां खातून का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। वर्षा ने शदीद एहतजाज करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, RPO बहावलपुर, DPO रहीम यार खान से मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। मुल्क भर की तरह पश्तून कल्चर डे सिब्बी में भी जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। पश्तून कल्चर डे के हवाले से जिरगा हॉल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खास डिप्टी कमिश्नर सिब्बी डॉक्टर मोहम्मद यासिर बाज़ई थे। तकरीब में कौमी तराना और पश्तून तराना भी बजाया गया, ढोल की थाप पर रक्स भी किया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सिब्बी से हुजूर बख्श। जी, जिंदा कौमें अपने त्यौहार बड़े जोश व खरोश से मनाती हैं। इसी हवाले से पश्तून कल्चर डे भी सिब्बी में बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आज सिब्बी में जिरगा हॉल ऑडिटोरियम में एक पुरवकार तकरीब का भी एहतमाम किया गया, जिसमें पश्तून के नौजवानों ने ढोल की थाप पर रक्स किया। इस तकरीब के मेहमान खास हमारे यहाँ के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर यासिर बाज़ई थे और उसके अलावा इलाके के जो कबायली मोतबरीन थे उन्होंने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। हमारे साथ यहाँ पर पश्तून कबाइल के नौजवान मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये अपने कल्चर को किस तरह मना रहे हैं और ये इस हवाले से क्या कहते हैं। जी फरमाइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़े जोश और जज्बे से हमने अपना पश्तून कल्चर डे मनाया है और इस दिन के हवाले से ये पैगाम दिया है कि तमाम अक़वाम, चाहे वो बलोच हों, सिंधी हों, चाहे पंजाबी हो, वो एक गुलदस्ते की मानद हैं और इसी भाईचारे और मोहब्बत को हमें आगे भी फ़रोग़ देना है। कल्चर डे के हवाले से सिर्फ़ ये पैगाम नहीं देना था कि आज हमने अपना जो है तो कल्चर उजागर करना है, दस्तार पहननी है, तो असल मकसद आज का दिन इकट्ठा होना और तमाम अक़वाम में भाईचारे की फ़िज़ा को कायम करने का पैगाम देना था। और बड़े जो है तो हसीन अंदाज में आज के हमारे मेहमान ख़ास ने भी और तमाम कबायली मोतबरीन ने तमाम अक़वाम के लिए एक अहम और ठोस जो है तो वो पैगामात दिए मोहब्बत के हवाले से। जी शुक्रिया। जी, इनका ये कहना था कि आज की जो हमने ये कल्चर बनाया है, ये हमने सिर्फ पगड़ी पहनकर अपने जो हमारा रिवायती लिबास होता है उसके पहनने से नहीं बनाया, बल्कि हमने ये पैगाम दिया है कि हमारे जो पश्तून है, ये कल्चर डे सिर्फ पश्तूनों का नहीं बल्कि तमाम कौमों का है। इसी हवाले से आज जो हमारी ये तकरीब हुई है, इसमें सिर्फ पश्तूनों ने नहीं बल्कि सिंधी, बलोच, पंजाबी, उर्दू स्पीकिंग और जो बाकी तमाम यहाँ से बसने वाली कौमों हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दिया। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और हम आगे भी इसी तरह से भाईचारे के साथ ही अपना ये कल्चर मनाते रहेंगे और भाईचारे का पैगाम आगे फैलाते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया हुजूर बख्श तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह लोधरा में भी छोटे बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए इंसदादे पोलियो मुहिम का सिलसिला तेजी से जारी है। पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इस पर मजीद तफसीलात लेते हैं अपने नुमाइंदा नदीम पीरजादा से, जो इस वक्त लोधरा के अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ मौजूद है। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, छोटे बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह लोधरा में भी इंसदादे पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी है। 5 साल से कम उम्र छोटे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाई जा रहे हैं ताकि किसी किस्म की माजूरी से बच सकें। इस वक्त हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट नबील सलीम साहब मौजूद हैं। मज़ीद हम इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से कितनी टीमें हैं और क्या इस हवाले से क्या कहेंगे। सर बताइएगा इस हवाले से। जी, इस वक्त पोलियो की जो मुहिम है, नेशनल मुहिम है, पूरे पाकिस्तान में ये हो रही है। ये 21 से 24 सितंबर तक जो है ये जारी रहेगी। ज़िला लोधरा में जो टोटल बच्चों की जो टारगेट है 5 साल से कम उम्र के, वो 3,50,000 टारगेट है। और इस मुहिम का इफ्तिताह DC लोधरा जनाब इमरान कुरैशी साहब ने भी किया है और सेक्रेटरी साउथ पंजाब अजमल भट्टी साहब ने भी इधर तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने भी इफ्तिताह इसका किया। तो ये मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। आज तीसरा दिन है। इसके बाद जो अगला दिन कल का दिन है, उसमें हमने टीमें सारी जो हैं वो जो बच्चे रह गए हैं, जो घरों में नहीं मिले और जो बच्चे इनकारी हैं, उनको कवर करने के लिए कैचअप डेज जिन्हें हम कहते हैं, उनको कवर करने के लिए कल का और परसों का दिन होगा। तो आज हमारा 3rd डे है और हमारा टारगेट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% अचीव हो गया है। ज़िला जो लोधरा है उसमें जो DHQ हस्पताल है, इधर भी तकरीबन 4 टीमें जो हमारी टीम्स हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे हमारी लगी हुई हैं।
جن میں سے 2 ٹیمیں جو ہیں وہ اسٹیٹک ہیں اور 2 جو ہیں وہ موبائل ٹیمیں ہیں، یعنی کہ وہ مختلف جگہوں پہ ایمرجنسی میں، پیڈز وارڈ میں اور مختلف جگہوں پہ جا کے وہ پولیو کے قطرے پلاتی ہیں بچوں کو۔ ہاں جی بالکل، ان کا بھی یہی کہنا ہے، پولیو مہم کا جو ہے سلسلہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ جاری ہے اور انشاءاللہ جو ہے باقی جو بچے رہ گئے ہیں کل انشاءاللہ ان کو بھی کور کر لیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ ندیم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ رخ کریں گے کبیر والا کا، جہاں اسپیشل مجسٹریٹ رانا مقصود نے چھوٹے دکانداروں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ آئے روز چھوٹے دکانداروں کو بھاری جرمانے دیے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب دکانداروں کا کہنا ہے کہ دن کے 500 روپے کماتے ہیں اور وہ جرمانے کی صورت ادا کر دیا جاتا ہے۔ اس پر مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے نوید احمد سے، جو ہمارے ساتھ کبیر والا سے لائن پر موجود ہیں۔ جی نوید، آگاہ کیجیے گا یہ کیا ماجرا ہے اور دکانداروں کا اس پر مزید کیا کہنا ہے؟ جی ہاں بالکل، اسپیشل مجسٹریٹ رانا مقصود نے کبیر والا مختوم پور روڈ پر چھوٹے دکانداروں کو ہیں وہ چیز ہم سے خریدی ہی نہیں گئی۔ مزید دکانداروں کا کہنا تھا اتنے پیسے ہم کماتے نہیں جتنے جرمانے ہمیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ دکانداروں کا ڈپٹی کمشنر خانیوال سے مطالبہ ہے کہ رانا مقصود کو ہماری جان چھڑائی جائے تاکہ ہم اپنے سکھ کا سانس لیں اور اپنے بچوں کا بہتر طریقے سے پیٹ پال سکیں اور روزی کما سکیں۔ جی بہت شکریہ نوید تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور یہاں خبر شامل کریں گے شجاع آباد سے، جہاں شجاع آباد تحصیل آفس میں آنے والے سائلین کے لیے سہولیات کا فقدان، نہ پینے کا صاف پانی ہے اور نہ ہی بیٹھنے کے لیے کوئی انتظامات کیے گئے ہیں۔ حکومت کو لاکھوں روپے کا ریونیو ملنے کے باوجود سائلین کو سایہ دار جگہ بھی میسر نہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ عتیق الرحمان کھوکھر سے، جو اس وقت تحصیل میں سائلین کے ساتھ موجود ہیں۔ جی عتیق الرحمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس میں موجود ہوں شجاع آباد کے تحصیل آفس میں، جہاں پر سہولیات کا فقدان ہے۔ حکومت کی جانب سے لاکھوں روپے کی مد میں ٹیکس تو وصول کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر سب آنے والے سائلین کو کوئی سہولت میسر نہیں۔ یہاں پر سائلین سایہ دار جگہ سے محروم ہے، ٹھنڈے پانی سے محروم ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاکھوں روپے کے بنائے جانے والے واش روم بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، نہ ہی وہاں پر پانی کی کوئی سہولیت ہے اور سائلین در بدر اور پریشانی میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آنے والے جو تحصیل آفس ہے کے افسر ہیں، تحصیلدار ہیں، وہ اپنے منمانے ٹائم پر آتے ہیں اور ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے جو اس ٹائم تحصیل آفس میں، ان سے بات کرتے ہیں کہ انہیں کیا مشکلات ہیں اور وہ کس کام سے آئے تھے۔ جی میں شجاع آباد سے بات کر رہا ہوں۔ یہاں سر یہاں پراپرٹی ہم 1,10,000 یا 20,000 میں پرچیز کرتے ہیں، اس کا جو یہ گورنمنٹ کا جو شیڈول ہے وہ 2,80,000 3 لاکھ روپے ہے، لہٰذا فیسیں ہمیں زیادہ بھرنی پڑتی ہیں، اس سے ہمیں مشکلات ہوتی ہے۔ اور پانی کا بھی مسئلہ ہے، یہاں پانی کا بالکل نظام نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ تحصیلدار صاحب 11:30 بج گئے ابھی تک نہیں ہے، عوام دھکے کھا رہی ہے تحصیل میں، اور بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، نہ پنکھے کا انتظام ہے، یہ بھی انتظام کیا جائے۔ جی شہریوں کو کہنا ہے کہ تحصیلدار اپنے من پسند ٹائم پر آتا ہے، عوام دھکے کھاتی دکھائی دیتی ہے۔ اور میں آپ کو بجلی کے لگائے جانے والے بلب بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، اس کی 4 دیواری بھی بوسیدہ ہو چکی ہے، تو لہٰذا حکومت وقت کو چاہیے کہ اس پہ توجہ دے اور یہاں پر سہولیات میسر کرے۔ جی بہت شکریہ عتیق الرحمان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ رخ کریں گے کوہاٹ کا، جہاں دکانداروں کے صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ دکانداروں کی جانب سے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ میاں خیلبال صدارتی امیدواروں میں محمد عدنان اور طارق درانی کے درمیان سخت مقابلہ جاری ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے عثمان پراچا پولنگ اسٹیشن میں موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی عثمان، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میاں خیل بازار صدارتی امیدوار کے الیکشن جوک در جوک شروع ہو چکے ہیں۔ دکانداروں کی جانب سے پولنگ کا عمل بھی شروع ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صدارتی امیدواروں میں 2 امیدوار ہیں، جو کہ عدنان اور طارق دورانی صاحب ہیں۔ ان کے درمیان کافی سخت مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر سیکورٹی کے بھی کافی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور مختلف دکاندار تاجر برادری یہاں پر آ رہی ہے اور اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو رجسٹرڈ دکانداروں کے ووٹ ہیں وہ تقریباً 778 ہیں اور یہ پولنگ کا عمل 5 بجے تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد یہاں پر گنتی کی جائے گی اور جس کے بھی زیادہ ووٹ ہوں گے اس کو یہاں کا میاں خیل بازار کا صدر منتخب کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب کے ضلع خانیوال میں ایک روڈ ایسا بھی ہے جو عرصہ 20 سال سے زیر تعمیر ہے۔ اس دوران کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، لیکن خانیوال کے نواحی علاقے میں 10 دیہاتوں کو آپس میں ملانے والا روڈ آج تک مکمل نہ ہو سکا۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندہ راؤ محمد عمران سے۔ جی راؤ محمد عمران، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल का नवाही इलाका चक नंबर 6610 में, जहाँ पर अरसा 20 साल से रोड ज़ेर तामीर है। इसके दौरान कई हुकूमतें आई और कई चली गई, लेकिन ये रोड मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये वाहिद रोड है, यहाँ पर 10 चकों को मिलाने वाला वाहिद रोड है जो आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। ठेकेदार जो है वो पैसे खाकर रफू चक्कर हो चुका है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जब इस हवाले से हमारे इलाका मकीनों से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने मुतअद्दिद बार ज़िला इंतज़ामिया को दरख्वास्तें भी गुजारी, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया ने आँखों पर स्याह पट्टी बांध रखी है। इन्होंने इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि इस रोड को मुकम्मल किया जाए और ठेकेदार और करप्शन में मुलव्वस तमाम सरकारी एहलकारों के ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई की जाए और इन्हें इबरत का निशान बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान अपडेट करने के लिए। रुक करेंगे कसूर का, जहां न्यू बाईपास पर लाखों रुपए के फंड से लगाई गई लाइट्स नाकारा हो चुकी हैं। रात के वक्त लाइटें ना चलने की वजह से चोरियां डकैतियां होना मामूल बन चुकी हैं। इसी हवाले से शहरियों का क्या कहना है, जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां काशिफ से, जो इस वक्त मौजूद हैं कसूर में बनाए गए न्यू बाईपास पे। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कसूर और मेन फिरोजपुर रोड को रायविंड और दीपालपुर रोड से मिलाने वाले बाईपास पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि ये 12 किलोमीटर का रोड है। यहाँ पर जो है साबका दौरे हुकूमत में लाखों रुपए के फंड से जो है वो लाइटें तो लगा दी गई हैं, लेकिन आज तक जो है इन लाइटों को एक दिन भी जो है वो नहीं चलाया गया है, जिसकी वजह से चोरियां डकैतियां और हादसात का होना जो है वो मामूल बन चुका है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनके इस हवाले से क्या कहना है। क्या कहेंगे भाईजान, लाखों रुपए के फंड से लाइटें लगाई हैं, क्या कहेंगे भाईजान? यहाँ पे ये बेकार लाइट्स पड़ी हुई हैं और इनकी वजह से, ये ना जलने की वजह से यहाँ पे अंधेरा होता है और चोरियों डकैतियों का आम मामूल बन गया और हादसात आम हो रहे हैं। ये सारे पोल टूटे पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे मेरी वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि ये लाइटों को ऑन किया जाए। जी, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि लाखों रुपए के फंड को जो है खुर्द बुर्द किया जा रहा है। इनका यही कहना है कि लाखों रुपए के फंड से लाइटें लगाई गई हैं, जिनको आज तक एक दिन भी नहीं चलाया गया। इनका यही कहना है कि रात होते ही यहाँ पर चोरियां डकैतियां का होना जो है मामूल बन चुका है और लाइटें ना चलने की वजह से जो हादसात का होना भी मामूल बन चुका है। इनका यही कहना है कि हम वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं, मुतालबा करते हैं कि इन लाइटों को फौरी तौर पर जो है वो चलाया जाए। जी बहुत शुक्रिया काशिफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। दीगर शहरों की तरह कसूर में भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बाद मिडिल क्लासेस को भी एसओपीज पर अमल करते हुए स्कूल में आने की इजाज़त दे दी गई है और बच्चों को एसओपीज पर अमल करवाते हुए स्कूल में बुलाया जा रहा है। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा आसिफ जावेद से, जो इस वक्त कसूर में मौजूद हैं। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा। जिस टाइम में मौजूद हूँ कसूर शहर के अंदर, जहाँ पर इंटरमीडिएट और मैट्रिक क्लासेस के बाद आज मिडिल क्लासेस को भी स्कूलों में बुला लिया गया है और यहाँ पर देखा जा सकता है तमाम एसओपीज पर अमल दरामद करते हुए बच्चों को स्कूलों में बुलाया गया है। और यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है कि बच्चों का थर्मल गन के थ्रू बच्चों का टेम्परेचर चेक करके बच्चों को क्लासेस के अंदर भेजा जा रहा है और बच्चों को मास्क के इस्तेमाल के साथ क्लासेस के अंदर भेजा जा रहा है और बच्चों के दरमियान सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल किया गया है और बच्चे स्कूल आते हुए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मेरे साथ यहाँ पर स्कूल के हेड टीचर मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं उन्होंने किस तरह एसओपीज पे अमल करते हुए बच्चों को स्कूलों में बुलाया है। जी सर, बताइए गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखा जा सकता है कि गवर्नमेंट के एसओपीज पर अमल दरामद करते हुए 15 सितंबर को मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्कूलों को खोला गया था। आज 23 सितंबर को मिडिल क्लासेस के बच्चों को भी स्कूल में आने की इजाज़त दे दी गई है। बच्चों को हाथ धुलवाने के लिए सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है। थर्मल गन की मदद से इनका टेम्परेचर चेक करके क्लासों में एसओपीज के मुताबिक 3 से 4 फुट के फासले पर बिठाया जा रहा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मर्ज से बचाए और तालीम का सिलसिला रुक ना सके। जैसा कि हेडमास्टर साहब का कहना है कि हमने तमाम एसओपीज पर अमल दरामद करते हुए स्कूलों को खोला है और बच्चों के दरमियान सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल किया गया है और बच्चे तकरीबन 3 से 4 फुट के सोशल डिस्टेंस के साथ क्लासेस के अंदर गए हैं और बच्चों को सोशल डिस्टेंस के साथ हम लोगों ने क्लासेस में बच्चों को बिठाया है और बच्चों ने मास्क का इस्तेमाल किया और बच्चे स्कूल आते वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और इसके अलावा हेडमास्टर साहब का कहना है कि अल्लाह का शुक्र है कि अरसा दराज बाद ये स्कूल खुले हैं और अल्लाह पाक हमें इस कोरोना जैसी मर्ज से बचाए। जी बहुत शुक्रिया आसिफ, आगाह करने के लिए। तरिंडा मोहम्मद पनाह में गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल ठल हमजा में हुकूमती एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद करके तदरीसी अमल जारी कर दिया गया। गवर्नमेंट स्कूल की हालत बेहतर नहीं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की निस्बत हुकूमती एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद जारी है। स्कूल स्टाफ और स्टूडेंट हुकूमती जारी करदा एसओपीज पर अमल दरामद करते हुए सैनिटाइजर से हाथों को धोकर
क्लास रूम में दाखिल होने लगे। इस बारे में स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि हुकूमती अहकामात पर मुकम्मल अमल जारी रखे हुए हैं। जालिम कोरोना ने स्कूल वीरान कर दिए। एसओपीज के साथ स्कूल खोलने का हुकूमती फैसला खुश आइंद है। स्कूल प्रिंसिपल का कहना था कि तालिब इल्मों को चाहिए कि दिल लगाकर तालीम हासिल करें और अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। लोधरा तहसील राजी सेंटर के ADLR ने अवाम को जलील और ख्वार करना शुरू कर दिया है। गाँव में सुस्ती और दफ्तर में टाइम पर ना आना मामूल बना लिया। दर्जनों ज़ईफ शहरी और जवान ADL के रवैये के खिलाफ सरापा एहतजाज। इस वक्त हमारे नुमाइंदा नदीम पीरजादा वहां पर मौजूद हैं। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोधरा में तहसील अराजी सेंटर में। यहाँ पर जो है दर्जनों लोग ADLR के नारवैया सलूक और टाइम पर ना आने की सूरत में और काम ना करने की वजह से सरापा एहतजाज है। और जो है इनका इल्ज़ाम है कि ये जो है ना दिन में जो है 11 से 12 बजे यहाँ पर आता है और 2 से 3 इंतकाल पास करके उसके बाद चला जाता है और बाकी लोग यहाँ पर धक्के खाने पर मजबूर है। हमारे साथ इस वक्त शहरी भी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। बुजुर्ग बताइएगा, कितने दिन से आप यहाँ पर आ रहे हो? 8 दिन से। और क्यों नहीं आपका इंतकाल पास हो रहा? इंतकाल कल जो है ना वक्फे से पहले बोला था कि मैं वक्फे के बाद करूंगा, वक्फे के बाद कागज उठाया, फिर बोला कल आना। इतना गाल किए थे। हमारे साथ इस वक्त एक और शहरी भी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। बताइएगा भाई, आपको किन मुश्किलात का सामना है और ADLR का क्या रवैया सलूक है आप लोगों के साथ? सर, ADLR का ये सलूक है, वो जो जनाब इधर कोई भी इंतकाल जो है ना पास नहीं करते, जो इनके नुमाइंदे हैं उनके करते हैं। और जो धक्के हम लोग शहरी खा रहे हैं, तो उसके बावजूद 12 बजे आते हैं, 1 बजे आते हैं। अभी ये क्या टाइम है आप देख सकते हैं सर, 12-1 का टाइम है, अभी आ रहे हैं ADLR साहब। तो जनाब ये जो है ना सब आवाम इनकी वजह से परेशान है। नए ADLR आए हुए हैं तो ये हमारा सही तरीके से काम नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि ADLR जो है कोई तवज्जो देने के लिए, काम पर फोकस करने के लिए तैयार ही नहीं है और कोई काम। जबकि जब हमारी इस हवाले से ADLR से बात हुई है तो उसका कहना है कि मेरी वालदा बहुत बीमार है, जिसकी वजह से मैं आज जो है लेट हूँ और जो है मैं अपना काम जो है टाइम पर करता हूँ और टाइम पर आता हूँ। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रुख करेंगे कंदकोट का, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जोंगलठल डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद के रहायशी को लेडीज वॉइस में धोखे से बुलाकर अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। कंदकोट के करीब कच्चे के इलाके में जिला जैकबाबाद के रहायशी मोहम्मद दादूपुर को डाकुओं की जानिब से लेडीज वॉइस में धोखा से बुलाकर अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस की इत्तला मिलते ही इंचार्ज स्पेशल टीम SHO मौला बख्श बुगटी और उसकी टीम की कामयाब कार्रवाई के बाद मोहम्मद दादूपुर को अगवा होने से बचा लिया गया। SHO मौला बख्श बुगटी ने मीडिया को बताया कि मोहम्मद दावदपुर को दागानी गैंग की जानिब से लेडीज वॉइस में धोखे से बुलाकर अगवा करना चाहते थे, जो कि पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अगवा से बचा लिया और उनको बाहिफाजत अपने वर्सा के हवाले कर दिया। शांगला बशाम केड़ी में शहतूत अम फाउंडेशन की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें शांगला मेडिकल कॉम्प्लेक्स के माहिर और तजर्बाकार डॉक्टर उजैरुल हक और लेडी सर्जन डॉक्टर महविश निसार गायनीकोलॉजिस्ट मरीजों का मुआयना किया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अमाज सलाज़ई की इस रिपोर्ट में। शांगला बिशाम केड़े में शहतूत अमन फाउंडेशन की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें शांगला मेडिकल कॉम्प्लेक्स अलपुरे के माहिर और तजुर्बाकार डॉक्टर अजीजुल हक और लेडी सर्जन डॉक्टर महविश निसार ने मरीजों का मुआयना किया। इस दौरान तकरीबन 200 से जायद मरीजों के मुआयने के साथ साथ उन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। मुकामी तंजीम खैरख्वाह फाउंडेशन केड़े के ज़ेर एहतमाम इस मुनक़िदा कैंप में ख़वातीन के मुआयने के लिए अलहदा जगह भी फराहम की गई। इस मौके पर शहतूत अमन फाउंडेशन के तर्जुमान सज्जाद अहमद ने कहा कि हमारा मिशन गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मजदूरों और बेसहारा लोगों की बेलौस खिदमत करना है। फाइनेंस सेक्रेटरी बिलाल अहमद ने बताया, इस तंजीम को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत करना है। शांगला मेडिकल कॉम्प्लेक्स के इंचार्ज मुतवक्किल खान भी इस कार खैर में माविन साबित हुए। इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने तंजीम की इस काविश को सराहा और कहा कि यही लोग शांगला के मुस्तकबिल को संवार सकते हैं। कैमरामैन वकास फीदा खान के साथ इमाद सलर से JNN जिले शांगला। और यहाँ आपको बताते चलें, चैनल JNN की खबर पर महकमा सुई गैस ने चक जलालुद्दीन के रिहायशियों का मसला तो हल कर दिया, लेकिन वापडा वालों की आंख ना खुल सकी। 4 घंटों के काम पर 1 साल लगा दिया। हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर बरी इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मसाइल क्यों हल नहीं हो रहे। जी अदनान, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा।
جی اس وقت چک جلال الدین گرجا روڈ پہ موجود ہوں اور یہاں پہ JNN کی خبر پہ تو ایکشن ہوا. یہ انہی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایکشن ہوا. اور سب سے اہم بات یہ کہ آج 1 سال گزرنے کے باوجود نہ پولی کا مسئلہ حل ہو سکا, گیس کا مسئلہ تو حل ہو گیا, لیکن باپڈا کی تاروں کا جو مسئلہ اس علاقے کے لیے جو شدید صورتحال اختیار کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ صرف 4 گھنٹے کا کام ہے اور 4 گھنٹوں میں اس علاقے کا مسئلہ جو ہے, سنگین مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. لیکن کیا وجوہات ہیں, باپڈا والے غفلت کیوں کر